Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We have already started the fifth chapter, that is expansion and consolidation of the British power in India. And in the last lecture, we saw the causes of the success of British in India. And today we will deal with the conquest of Bengal by the British. Before beginning, please like, share, and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lecture. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो क्या क्या देखेंगे हम आज के लेक्चर में वी विल सी अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ द बंगाल एंड देन टू इम्पॉर्टेंट बैटल्स वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स दैट इज बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर ओके सो ओवरऑल वी विल सी दैट हाउ द ब्रिटिश कॉन्क्यर्ड बंगाल ठीक है थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन बंगाल राइट नाउ सो बंगाल आपका रिचेस्ट प्रोविंस है मुगल एम्पायर का एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपका प्रेजेंट डे बांग्लादेश regions of Bihar and Odisha. Okay, and Nawab is the highest authority here, which is ruling the region, that is the Bengal. Okay, so the head is known as the Nawab. Remember this, right? Now exports from Bengal to Europe. इसमें आपके जो जो items हैं जो यूरोप जा रहे हैं especially from Bengal, those items are saltpeter, rice, indigo, pepper, sugar, silk, cotton, textiles, handicrafts and etc. That is lot of items are getting imported from this particular region only. Okay, and English East India Company का जो ट्रेड हो रहा था फ्रॉम द एशिया की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से 60% ट्रेड 60% जो इम्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बंगाल से जा रहे थे 60% of the British imports from Asia consisted of goods from Bengal only. Okay, and then you know that when the English came they established their factories in the Bengal as well. कहाँ पे की थी इन्होंने बालासोर हुगली कासिम बाजार पटना and Dhaka. Okay, so these were the important areas where the British established their factories. And 1690s तक आते आते the foundation of Calcutta by the English company completed the process of English commercial settlement in Bengal. You know Calcutta was established or I should say founded by the English company only. इसका पुराना name था I have told you in the previous lectures as well that Kalikata. It was known as Kalikata and Job Charnock was the company agent, English company agent who was responsible for creating Calcutta. Okay, yes. नाउ बंगाल में अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट जो है पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर लिए यहाँ पे अब अच्छा खासा इनका ट्रेड चल रहा है ओके लेट्स टॉक अबाउट द नवाब्स ऑफ बंगाल अ लिटिल okay now we have the very first name as Murshid Quli Khan and when we were talking about the regional states rise of regional states तो हमने वहाँ पे बात की थी बंगाल की and if you remember we talked that Murshid Quli Khan laid the foundation of the Bengal okay laid the foundation in the sense that as a regional state he laid the foundation of it क्योंकि मुगल एम्पायर से अब धीरे धीरे बंगाल का कट आउट होना शुरू हो गया था okay so in 1700 he becomes the Diwan of the Bengal and 1727 tak he ruled then after Murshid Quli Khan who succeeds his son-in-law that is Shujauddin who ruled till 1739 after Shujauddin you have your Sarfaraz Khan okay he is an incapable son of Murshid Quli Khan and he was killed by Alivardi Khan तो अभी आपने देखे चार नेम्स आपने देख लिए यहाँ पे फर्स्ट इज योर मुर्शीद कुली खान सो रिमेंबर ही इज़ द फर्स्ट नवाब सेकेंड है आपके शुजाउद्दीन ओके रिमेंबर दिस देन यू हैव योर सरफराज खान एंड देन यू हैव योर फोर्थ अलीवर्दी खान ओके अलीवर्दी खान रूल्स टिल 1756 ठीक है and now he does a very important thing that he stops the tributes to the Mughal empire or emperor आपको पता है that जितने भी एरियाज़ में गवर्नर्स अपॉइंटेड थे फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर जो मुग़ल एम्पायर के अंडर ही थे एरियाज़ लेकिन वहाँ पे मुग़ल एम्परर की जगह या उनके बिहाफ पे जहाँ जहाँ पे गवर्नर्स हैं सूबादार हैं या फिर दीवान्स रूल कर रहे हैं तो कुछ शेयर जो है वो एम्पायर को देते थे ट्रिब्यूट्स देते थे तो ये क्या किया ये अलीवर्दी खान ने स्टॉप कर दिया ठीक है and this was an important decision and it is now going to change the history of the
बंगाल, बिकॉज अब बंगाल जो है सेपरेट होने वाला है आपका मुगल एम्पायर से, एंड मुगल एम्पायर से निकल के वो किसके हाथ में जाने वाला है? इट इज गोइंग टू बी इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. ओके, यस. नाउ अंडर दीज रूलर्स, ये जो आपके रूलर्स है, बंगाल ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, ये काफ़ी फ्लरिश भी हुआ. एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज अगर मैं बाकी से कंपेयर करूँ तो you saw that factions are going on, inter-border disputes चल रहे, especially in the Carnatic region. You saw the Anglo-French struggle is going on and the Carnatic wars are going on. ठीक है, मराठा invasions भी हो रहे हैं, जाट revolts हो रहे हैं, and then you saw that Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali came to India, right? So lot of chaos is going on, lot of disruption is going on in the other parts of India, but Bengal comparatively is peaceful. Okay, so the region of Bengal was fortunate enough to escape these challenges. Remember this is important. Okay, now almost all the governors of the Bengal, they strongly resented the special privileges enjoyed by the English company. Special privileges means that whatever profits they were earning, and they were not required to pay the taxes, that not completely, but the rate was very less. तो जितना भी रेवेन्यू वो अर्न कर रहे थे, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे, वो डायरेक्टली किसके पॉकेट में जा रहा था? ऑलमोस्ट ब्रिटिश के पॉकेट में जा रहा था, एंड ह्यूज लॉस टू द प्रोविंशियल एक्सचेकर. दैट इज, ये नवाब्स को इसमें से कोई शेयर नहीं मिल रहा है कुछ खास, तो ये नवाब के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है. तो अब इसकी वजह से क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकेम द चीफ कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या है, इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. ऑब्वियसली द नवाब वांट्स द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द इंग्लिश कंपनी डजंट वांट टू शेयर दैट. सो ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड 1757 से लेके 1765 में अब जो पावर है वो ग्रेजुअली ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द नवाब्स ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश. ओके, एंड फाइनली ब्रिटिश विल डिफीट द नवाब्स एंड दे विल completely rule the Bengal in the coming times. ठीक है, तो अब ये हम स्टोरी देखेंगे that how it happens and what are the roles of Battle of Plassey and Battle of Buxar. So let's talk about Alivardi Khan. Who was Alivardi Khan? He was the fourth Nawab after Sarfaraz Khan. Okay, yes, remember this. Now Alivardi Khan in 1741 he becomes the Deputy Governor of Bihar. And ये इससे पहले वाले जो नवाब हैं, that is Sarfaraz Khan, he kills them. Okay, and certified his own position as the new Subadar. तो इस तरीके से ये बंगाल के नवाब बनते. He was not appointed as such, but yeah, he kills the previous नवाब. He ruled for 15 years and इस पूरे पीरियड में उन्होंने मराठास से भी काफ़ी फाइट किया. तो इस चीज़ का जो है एडवांटेज इंग्लिश ने लिया. What they did, English took the advantage of the Maratha incursions in Bengal by obtaining permission from the Nawab. किस चीज़ की परमिशन ले ली है इन्होंने नवाब से? टू डिग अ डिच एंड थ्रो अप एन एंट्रेंचमेंट अराउंड देयर सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम. वेरी, ये पूरा स्टोरी यू डोंट हैव टू रिमेंबर. ये कोई एक डिच उन्होंने बनाया है, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज फोर्ट विलियम को इन्होंने आइसोलेट एंड प्रोटेक्ट कर लिया. व्हाट आई मीन टू से इज, ये था, लेट्स से दिस इज द एरिया ऑफ द फोर्ट विलियम. ओके, नाउ व्हाट दे डिड, दे डिग अ डिच. इसके चारों तरफ इन्होंने एक डिच बना लिया. ओके, जिससे वो बाकी सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा आइसोलेट हो गया. ओके, सो ये इसकी परमिशन जो है इन्होंने नवाब से ले ली थी इस डिच को बनाने. डिच इज़ नथिंग बट एक नैरो, आपने चारों तरफ कैनाल जैसा कुछ बना लिया है, तो वो एरिया फिर डेजिग्नेट अलग से डिमार्केट हो गया. Okay, so this kind of thing he did. So it is nothing short of fortifying your area. Fortifying में भी वही होता है कि आप defensive walls बना लेते हो चारों तरफ. So something like that. Okay, now Alivardi Khan, he is now apprehended. Like he is now a little worried. उसको थोड़ा सा doubt होने लगा है कि जो कार्नेटिक रीजन में इंग्लिश ने किया. Okay, Alivardi Khan's apprehensions drawn to the Carnatic region, that how English finally conquered the Carnatic area, if not conquered, but yeah, they were successful in defeating the French, right? So वहाँ पे सारी की सारी पावर उनके अंडर ऑलमोस्ट आ गई थी. यूरोपियन कंपनीज हैड अजर्ब्ड ऑल पावर.
ठीक है, तो अब अली वर्दी खान को लगता है दैट दे माइट डू द सेम थिंग इन बंगाल एज वेल। तो अब उनको रियलाइज हो गया है दैट वी हैव टू एक्सपेल द यूरोपियंस फ्रॉम द बंगाल, हमको बंगाल से यूरोपियंस को निकालना है। लेकिन 1756 में ही उनकी डेथ हो जाती है एंड देन ही सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला। वेरी इंपॉर्टेंट नेम सिराजुद्दौला, बिकॉज नाउ ही इज़ द वन जिसकी वजह से आपका बैटल ऑफ प्लासी फॉट होने वाला है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, आफ्टर अली वर्दी खान हु इज गोइंग टू सक्सीड, द नेम इज सिराजुद्दौला। नाउ लेट्स सी सिराजुद्दौला के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज ही इज गोइंग टू फेस। सो व्हेन सिराजुद्दौला केम टू द थ्रोन ही वाज वेरी यंग, सिर्फ 20 ईयर्स के थे, एंड ही इनहेरिटेड मैनी ट्रबल्स फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर। अभी क्या ट्रबल्स हैं इसमें? ट्रबल्स ये हैं कि एक तो राइवल्स बहुत सारे हैं इनके सामने। राइवल्स जैसे सबसे पहले हैं शौकत जंग, ये इनके कज़न हैं हु इज़ अ नवाब ऑफ पूर्णिया। पूर्णिया इज़ ऑल्सो द रीजन ऑफ प्रेजेंट बिहार, लेकिन उस टाइम पे बंगाल का एरिया था। सिमिलरली एक इनकी आंट हैं हु इज़ घसीटी बेगम, शी इज़ अ चाइल्डलेस विडो। ठीक है, ये डिटेल्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट सी द स्टोरी, ओके। ठीक है, एक कमांडर है मीर जाफर। नाउ दिस नेम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नवाब। रिमेंबर दिस, ठीक है। मीर जाफर कौन थे? ही वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। किसकी आर्मी? नवाब की आर्मी। तो ही स्टार्टेड रेबेलिंग, ओके। नाउ देयर वॉज अ डोमिनेंट ग्रुप ऑल्सो, मतलब ये लोग तो हैं, इतने सारे राइवल्स आपने देखे, 3 राइवल्स आपने देखे। फर्स्ट इज योर शौकत जंग, कज़न है। फिर आपके घसीटी बेगम है, शी इज़ दी आंट, एंड देन यू हैव योर रेबेलियस कमांडर मीर जाफर। नाउ देयर इज़ अ डोमिनेंट ग्रुप, एक वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है ना हर एम्पायर में, ओके। दोज पीपल आर जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ एंड अदर्स। रिमेंबर दीज नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ, ओके। सो ये कोर्ट में है, इनका भी एक पूरा ग्रुप है, इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं ये। So these were the internal rivals, and these were, they were the threat to the Sirajuddaulla's position as a Nawab. Okay, right? Threat to Siraj position from the ever-growing commercial activity of the इंग्लिश कंपनी। मतलब ये सब तो है ही, प्लस इंग्लिश कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से वो धीरे धीरे खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड दे आर नॉट शेयरिंग इट विद द नवाब, द स्टेट। सो दिस इज ऑल्सो अ cause of worry for the Nawab. Now Siraj felt insecure. He gets worried and he starts feeling insecure, and this prompted him to act in ways which proved counterproductive. ऑब्वियसली एक आप जोश में आके जो है ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से ही पेज फॉर इट, ओके। व्हाट ही डज, ही डिफीट्स, सबसे पहले तो शौकत जंग को वो मार देते हैं, ठीक है। घसीटी बेगम को भी अपने रास्ते से हटा देते हैं, एंड मीर जाफ़र को वो डिसमिस कर देते हैं, और मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को वो बना देते हैं कमांडर ऑफ द आर्मी। एंड देयर इज़ अ कश्मीरी ऑफिसर मोहन लाल who is the overall administrator and he behaves like a prime minister. So ये जितने भी इन्होंने काम किए ये सब एक जल्दबाजी में किए, एंड नाउ ये बन जाएगा आपका बैकग्राउंड, एक प्रिल्यूड to the Battle of Plassey. Let's discuss Battle of Plassey now. Okay, keep this story in mind that what Sirajuddaulah did. Prelude to the battle. Now officials of the company made rampant misuse of its trade privileges. मिसयूज़ कर रहे हैं जो भी उनको ट्रेड के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, इससे नवाब के फाइनेंसेस को अफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ उनको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका पहला रीज़न है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के लिए। Sorry, I forgot to show you the question. So have a look at the question. Have a look at the question. Give a brief account of Battle of Plassey and discuss how it confirmed the sovereignty of English over Calcutta. Okay? Okay, let's begin. So we saw that Nawab को financial loss हो रहा है बहुत ज़्यादा. Now English fortified Calcutta without the Nawab permission. बिना उनकी परमिशन के कैलकटा को फोर्टिफाई कर लिया है. फोर्टिफाई, I told you, right? That is creating the defensive walls around the area. Now if you are
क्रिएटिंग द वॉल्स, ठीक है, उस प्लेस को अगर आप आइसोलेट कर रहे हो, सो दिस इज लाइक क्रिएटिंग योर ओन पर्टिकुलर एरिया. ओके, सो दिस वॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा. वो भी बिना नवाब की परमिशन के ये लोग कर लेते हैं. नाउ कंपनी फर्दर ट्राइड टू मिसलीड हिम एंड कंपाउंडेड दिस इन, दैट इज एक और ये गलत काम करते हैं, एक और क्राइम ये कर देते हैं, दैट दे गिव असाइलम टू अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णदास. कृष्णदास एक्चुअली नवाब के ट्रेजर्स लेके भाग गया था, बहुत सारे ट्रेजर्स लेके ही रैन अवे. सो ही was given asylum, he was given protection by the English company. Now company on its part, अब कंपनी को क्या लगता है, इंग्लिश कंपनी को लगता है दैट सिराज जो है वो ट्रेड प्रिविलेजेस जो हैं वो रिड्यूस करने वाले हैं इंग्लिश कंपनी के इन द कॉल्यूजन विद द फ्रेंच इन बंगाल, दैट दे आर गोइंग टू अलाइ विद द फ्रेंच एंड दे विल reduce the privileges of the English in the favor of the French. So when the Siraj attacked and seized the English fort at Calcutta, जब वो कैलकटा पे जाके अटैक करते हैं तो ऑब्वियसली अब जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंड नवाब के बीच में एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, यस. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक इंसिडेंट हुआ है एक्चुअली विच इज नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी in the history. What happens here that ऐसा माना जाता है, see, this is believed here and it's not proven yet. So what is believed that Sirajud-Dowlah had imprisoned 146 English persons into a single tiny room. एक छोटे से रूम में उनको बंद कर देते हैं वो, in which 123 of them died. 146 में से 123 की suffocation की वजह से death हो जाती है. However, historians either do not believe this story or say that number of victims must have been much. So this is the story of the black hole tragedy. So remember, question might be asked that black hole tragedy incident किससे related है और especially किस battle से related है. So remember, it is related to the battle of Plassey and the Nawab Sirajud-Dowlah. Okay, तो ये कुछ आपका prelude था, that is background था. अब बैटल पे आते हैं, दैट फाइनली बैटल होता है आपका. सो हाउ द बैटल टेक्स प्लेस, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आपकी आती है अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइवेट. कैलकटा ये लोग पहुंचते हैं, मद्रास से आए हैं, ठीक है, एंड इंग्लिश की आर्मी को बंगाल में जो ऑलरेडी पोजिशन है इंग्लिश की आर्मी को, वहाँ पे उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. एंड प्लस व्हाट ही डज, क्लाइव एक बहुत ही डिप्लोमेसी यूज करते हैं एंड ही forged a secret alliance with the traitors of the Nawab. You remember Mir Zafar, Rai Durlab, Jagat Seth, ठीक है, एंड ओमी चंद. रिमेंबर दीज नेम्स ना. तो इनके साथ ये अलाइज हो जाते हैं, इनका हेल्प जो है क्लाइव को मिल जाता है. ओके, सो दे बिकम द ट्रेटर्स टू द नवाब. एंड डील में क्या होता है, क्या डील होती है क्लाइव के बीच में और इन सभी लोगों के बीच में, दैट मीर जाफर को जो है वो नेक्स्ट नवाब, अगर इंग्लिश जीत जाती है तो मीर जाफर वुड बी मेड द नेक्स्ट नवाब एंड इन टर्न कंपनी को रिवॉर्ड्स मिलेंगे फॉर इट्स सर्विसेज. तो ये डील होती है बिटवीन द इंग्लिश एंड द मीर जाफर एंड द अदर्स. ओके, तो अब ये डील हो गई है एंड नाउ English force has become really strong. So the English victory in the Battle of the Plassey was decided. That battle होने से पहले it was decided that English is going to win before the battle was even fought. Sirajud-Dowlah was captured and he was murdered. So Battle of Plassey placed at the disposal of English vast resources of Bengal. अब ट्रेड तो वैसे भी चल रहा था एंड जो बचे कुछ रिसोर्सेज थे वो सब अब इंग्लिश के हाथों में आ जाते हैं. एंड प्लासी के बाद, इस बैटल के बाद, इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द बंगाल. वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है कंक्लूजन है इस बैटल का, दैट इंग्लिश भले ही अभी भी पूरी तरीके से रूलर नहीं बने हैं बंगाल के, बट उनके हाथ में ट्रेड, ऑलमोस्ट सारा ट्रेड आ गया है, मोनोपोलाइज कर लिया है एंड कॉमर्स बंगाल का मोनोपोलाइज कर लिया है, जो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम तो वही है. तो वही चीज़ अगर मोनोपोलाइज कर ली है तो रूलर्स भी बन ही जाएंगे. ओके, इस बैटल का सिग्निफिकेंस क्या है, अब विक्ट्री हुई क्योंकि जैसा कि डील में साइन हुआ था कि मीर जाफर को नवाब बना देंगे. सो मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ द बंगाल एंड ही गिव लार्ज सम्स ऑफ मनी. इंग्लिश कंपनी को उन्होंने, जैसा कि
डील में साइन हुआ था कि उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, तो काफ़ी मनी दिया जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज. इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, 24 परगनाज इज द एरिया, इज द नेम ऑफ द एरिया इन द बंगाल ओनली. तो वहाँ की जमींदारी जो है वो इंग्लिश को मिल जाती है. जमींदारी का मतलब समझते हैं ना, द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज. जो लैंड्स हैं वहाँ के वो उनके अंडर में आ गए हैं, एंड दे कैन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नाउ कलेक्ट द रेवेन्यू. सो दिस इज very important step in the direction of the conquest of Bengal. Now battle of Plassey का एक political significance भी है, that it laid the foundation of the British Empire in India. ठीक है, इस बैटल के बाद हम कहते हैं, we say that अब जो है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, आई एम नॉट सेइंग बंगाल, रिमेंबर, इंडिया में इसका फाउंडेशन हो गया है. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन राइटली रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो बैटल ऑफ प्लासी को माना जाता है कि हाँ, अब यहाँ से शुरू हो गया है ब्रिटिश पीरियड इंडिया में, ब्रिटिश रूल इंडिया में. सो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, मेंस आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए दीज आर important. So the battle established one more thing, that is the military supremacy of the English in Bengal, that yes, they are superior in arms and weapons, and ये चीज़ भी establish हो जाती है. Okay, they obtained a grant, that is company obtained a grant of territories for the maintenance of a properly equipped military force. और उनको कुछ और एरियाज और टेरिटरीज दे दी जाती कि ठीक है, आप यहाँ पे अपनी जो आर्मी है उसको मेंटेन करो, एंड उनका प्रेस्टीज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. बट अभी क्या है ना, अभी गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आया. देयर वाज नो अपरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल चलेगा, गवर्नेंस कैसे होगा, दैट इज नॉट चेंज्ड मच. एंड सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर्स पास्ड टू द क्लाइव. भले ही क्लाइव के हाथों में, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में चला गया सारा अफेयर्स, बट गवर्नमेंट इज स्टिल द सेम, द फंक्शनिंग इज स्टिल द सेम. ठीक है, एंड इनके सपोर्ट पे, क्लाइव के सपोर्ट पे जो आपके न्यू नवाब है मीर जाफर, he is entirely dependent for maintaining his newly acquired position, kind of becoming a puppet in the hands of the English East India Company. And English East India Company wanted this only. Okay, so this was about the Battle of Plassey. यहाँ पे मीर कासिम and Treaty of 760 भी देख लेते हैं. By the way, for this question which we discussed, that is give a brief account of Battle of Plassey and discuss how it confirmed the sovereignty of English over Calcutta. तो आप पहले प्रिलूड बताएंगे दैट कैसे कंपनी में और इंग्लिश में आपकी हॉस्टिलिटीज़ क्रिएट होती हैं. देन आप ब्लैक होल ट्रेजेडी का भी मेंशन कर सकते हैं. बैटल में आएंगे तो आप बताएंगे कैसे ट्रेटर्स के साथ क्लाइव जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एंड डील साइन होती है इन दोनों के बीच में, दैट मीर जाफर विल बी दी नेक्स्ट नवाब. एंड देन फाइनली इन द ईयर 1757 जून में ये बैटल होता है, एंड द इंग्लिश विंस, मीर जाफर बिकम्स द नेक्स्ट नवाब, एंड द इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड. ओके, सिग्निफिकेंस में भी आप बताएंगे दैट जमींदारी 24 परगनाज कम्स अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हैज़ बीन लेड इन इंडिया. ओके, यस. नाउ देयर इज मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760. अब क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, मीर जाफर बन तो गए हैं नवाब, ओके, बट ही इज ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड लाइक द अर्लियर नवाब्स. ही इज ऑल्सो गेटिंग वरिड ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइव. जिस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है नवाब के अफेयर्स में, तो मीर जाफर इज गेटिंग इरिटेटेड ऑफ इट. सो ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विद द डच एट द चिंसूरा. ओके, नाउ अभी डच हैं यहाँ पे इस टाइम पे, हम 1760 की अभी बात कर रहे हैं. 1757 में बैटल हो गया है प्लासी का. ठीक है, उस इस पीरियड की हम बात करें तो अभी डच हैं आपके इस पीरियड में प्रेजेंट है, बट डच ऑलरेडी वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्सेस एट बेदारा. इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बैटल ऑफ बेदारा जो 1759 में होता है. बिटवीन होम, बिटवीन द इंग्लिश एंड नेक्स्ट आपके डच. तो आप अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मीर जाफर जो हैं डच के साथ आपके मिलके फाइट करते हैं बैटल ऑफ चिंसूरा और बैटल ऑफ बेदारा. ठीक है, इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है, राइट. यस, तो यहाँ पे इंग्लिश के
साथ फाइट हो रही है डच प्लस मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर डच की हेल्प लेते हैं, बट यहाँ पे भी डच गेट्स डिफीटेड और द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर जाफर एंड द डच गेट्स डिफीटेड। अब इंग्लिश इससे बहुत अनॉय हो जाते हैं दैट अभी तक तो सब ठीक चल रहा था एंड कैसे मीर जाफर ने हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर ली। सो दे गेट अनॉयड एंड मीनवाइल मिरान, ही इज द सन ऑफ जाफर, ही डाइज, दैट इज मीर जाफर, एंड एक फाइट शुरू हो जाती है अब नवाबशिप के लिए, दैट हु विल बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ओके, किसके बीच में? बिटवीन द मीर कासिम। अब एक नया कंटेंडर सामने आया है, मीर कासिम, ये मीर जाफर का सन इन लॉ है, ठीक है। So a fight starts for the Nawabship. Now Vansittart, he is the new governor of Calcutta at this time. वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं किसको? मीर कासिम को। He decides to support मीर कासिम claim after a treaty between मीर कासिम and the company. ठीक है, एक ट्रीटी अब मीर कासिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन होती है इन द ईयर 1760। एंड इस ट्रीटी के क्या टर्म्स है, क्या डिसाइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मीर कासिम एग्री करते हैं, ठीक है हम कंपनी को जो है कुछ एरियाज ट्रांसफर कर देंगे जो है आपके बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तागोंग। प्लीज रिमेंबर दीज एरियाज। ये 3 एरियाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपनी को चूनान ट्रेड जो सिलहेट में हो रहा है आपका। व्हाट इज सिलहित? सिलहित एक्चुअली अभी बांग्लादेश का भी पार्ट हो गया, बट उस टाइम तो बंगाल का पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में आपका ट्रेड हो रहा है किस चीज़ का? चूनाम का। चूनाम इज नथिंग दैट चूना, वो लाइन जो आप पान वगैरह में स्पेशली यूज़ करते हैं, तो दैट ओनली इसका जो है ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो कंपनी को इसका आधा शेयर अब मिलेगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन मीर कासिम प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5 lakh towards financing the company's war efforts in southern India. Now this is very important कि अब कंपनी के खर्चे भी मतलब अभी तक तो वैसे भी बंगाल परेशान था कि हमको शेयर नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स का शेयर नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बट अब एक और नया लॉस दैट अब वॉर एफर्ट्स भी कंपनी के किसको फिनांस करने पड़ेंगे? नवाब को फिनांस करने पड़ेंगे। उसके लिए उनको 5 लाख का सम जो है किसको देना पड़ा? कंपनी को। Okay, and it was agreed that Mir Qasim's enemies were the company's enemies and his friends' company's friends. Okay, so these were the treaty, the terms of the treaty. Very important. You have to remember these names: Burdwan, Midnapur, and Chittagong. Okay, Sylhet wala trade, right? So under the pressure of this company, Mir Zafar decided to resign in favor of Mir Qasim. अब फाइनली जो है आपके मीर कासिम बन जाते हैं द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर मीर जाफर। रिमेंबर दिस, ओके। नाउ मीर कासिम क्या करते हैं? मीर कासिम टेक्स सम स्टेप्स। पावर में आने के बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मीर कासिम ने किया ये, एंड द मूव वॉज टेकन टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी एट कैलकाटा। तो उन्होंने जब मुर्शिदाबाद से, जो अभी तक बंगाल की कैपिटल थी, वो अब ट्रांसफ़र कर दी मुंगेर में, दैट इज़ मुंगेर आपकी नई कैपिटल होगी अब, ठीक है। तो ये इसलिए किया इन्होंने ताकि कंपनी से एक सेफ डिस्टेंस बनी रहे, ज़्यादा जो है कंपनी का इंटरफेरेंस ना हो नवाब के अफेयर्स में, ठीक है। दूसरे क्या मीर कासिम ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, दैट रीऑर्गेनाइज किया उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को विद द मेन ऑफ हिज ओन चॉइस, ठीक है, ताकि सो दैट रेबेल ना कर पाए अगर इंग्लिश का इंटरफेरेंस होगा एंड इंग्लिश के मेन होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब बहुत कुछ जो है डिसाइड हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स में भी इंग्लिश डिसाइड करें तो, लेकिन मीर कासिम करते हैं कि मैं अपने चॉइस के मेन रखूँगा, एंड उन्होंने रीमॉडल किया आर्मी को टू एनहांस इट्स स्किल एंड एफिशिएंसी, सो दैट अगर कंपनी से फाइट करना पड़े तो बेटर फाइट कर पाएँ। सो मीर कासिम के ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। So this was all about Battle of Plassey. You have to mention, you can definitely mention this treaty मीर कासिम की जो treaty साइन हुई है 1760 की with the English, okay. So make the mention of the Battle of Bidara, okay, and the deal between the Mir Qasim and the terms of this treaty, okay. Now the next important battle, which is your Battle of Buxar. Let's have a look at the question. The Battle of Buxar established English as the real masters of Bengal. Discuss. Also explain the dual system of government in Bengal. You have to
डिस्कस कि बैटल ऑफ बक्सर ने कैसे इंग्लिश को फिर रियल मास्टर्स बना दिया बंगाल का, एंड कुछ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी आपको बताना है. वी विल सी व्हाट वाज द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ओके, लेट्स बिगिन. सो नाउ कंपनी को लगा कि मीर कासिम जब अब आपके नए नवाब बन गए हैं तो ही विल बिहेव एज अ पपेट, बट ऐसा होता नहीं है, एंड ही बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक और द ट्रेड परमिट. सी, दस्तक क्या है आपके? ट्रेड परमिट है, दैट इज कुछ गुड्स, कुछ सामान जो है उस पे आपको ड्यूटीज नहीं पे करनी, दैट इज टैक्सेस नहीं पे करनी. अगर आपके पास वो पास है, वो दस्तक है, आप उसको दिखाओ और बिना उस टैक्स को पे किए जो है ट्रेड कर लो, उस गुड का ट्रेड कर लो. तो दीज वर द दस्तक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इसका मिसयूज कर रहे थे कंपनी ऑफिशियल्स, जिससे टेंशंस क्रिएट हो गई बिटवीन द नवाब एंड द इंग्लिश. ओके, तो ये आपका जो है रीजन है इस बैटल ऑफ बक्सर के लिए. तो मिसयूज अगर हो रहा है दस्तक का, तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रॉम द ट्रेड ऑफ द गुड्स, उसका कहीं ना कहीं लॉस जो है वो नवाब को होगा. तो लोकल मर्चेंट्स जो हैं, दे वर फेसिंग अनइक्वल कॉम्पिटिशन एज वेल विद दी कंपनी मर्चेंट्स, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक तरफ आपने कंपनी को दस्तक दे दिए, उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो उनके गुड्स जो है महंगे होंगे, और महंगे अगर उनके गुड्स होंगे, उनका सामान अगर महंगा होगा, तो उनके सामान की परचेजिंग कम होगी. तो ये जो है कुछ लॉसेस जो है वो नवाब को हो रहे थे. ठीक है, नाउ कंपनीज सर्वेंट्स ऑल्सो सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स फॉर अ कमीशन. और कमीशन के लिए कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो इंडियन मर्चेंट्स को बेच देते थे. तो ऑब्वियसली अब दस्तक अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब टैक्सेस नहीं हो रहे हैं पे, और फाइनेंशियल लॉस, अगेन नवाब को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका फाइनेंशियल लॉस. एंड दे यूज्ड द इंग्लिश, दे यूज्ड कोअर्सिव मेथड्स टू गेट गुड्स एट चीपर रेट्स, विच वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ड्यूटी फ्री ट्रेड. तो ये कुछ काम ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अब नवाब और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशंस और क्रिएट हो रही हैं. तो मीर कासिम क्या डिसाइड करते हैं? मीर कासिम डिसाइड करते हैं कि मैं सारी ड्यूटीज़ ही ख़त्म कर दूंगा, ना तो रहेंगी ड्यूटीज़, फिर कोई ट्रेड का मिसबैलेंस भी नहीं होगा. बट द ब्रिटिश प्रोटेस्टेड, ब्रिटिश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, एंड दे इंसिस्ट, वो फोर्स करते हैं नवाब को कि आप हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो एज अगेंस्ट अदर ट्रेडर्स, दैट इज जो लोकल ट्रेडर्स हैं स्पेशली उनके अगेंस्ट हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, दैट इज वी शुड बी अलाउड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस. नाउ नवाब कंपनी का जो ये टसल है ट्रांजिट ड्यूटी को लेके, अब जो है वॉर आउटब्रेक होगा बिटवीन दी इंग्लिश एंड द मीर कासिम. तो ये बनता है आपका बैकग्राउंड और रीज़न इस बैटल के लिए. ठीक है, तो छोटे छोटे पहले वॉर्स एरप्ट होते हैं दोनों के बीच में, इंग्लिश के बीच में और मीर कासिम के बीच में. एंड उन छोटे वॉर्स में क्या है, इंग्लिश को विक्ट्रीज मिलती हैं, दे विन एट काटवाहा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी, मुंगेर, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं. अब इसके बाद मीर कासिम क्या करते हैं, ही फ्लेड टू अवध, अवध भाग जाते हैं, और वहाँ जाके कॉन्फिडरेसी, एक एलाई, एक क्रिएट करते हैं, अलायंस क्रिएट करते हैं विद नवाब ऑफ अवध, जो इस टाइम पे हैं शुजाउद्दौला, एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू. ऐसा लगता है नवाब को कि अगर मैं इनके साथ अलायंस कर लूँगा तो मैं बंगाल को इंग्लिश से रिकवर कर पाऊंगा. सो रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीर कासिम किस किस के साथ अलायंस क्रिएट करते हैं. सबसे पहले शुजाउद्दौला, हु इज़ द नवाब ऑफ द अवध, एंड द सेकेंड वन इज़ द मुगल एम्परर हिमसेल्फ, दैट इज़ शाह आलम टू. ओके, अब आपका स्टार्ट हो जाता है बैटल. बैटल में क्या होगा, आपकी कंबाइंड फोर्सेस हैं, आर्मीज है मीर कासिम की, नवाब ऑफ अवध एंड द शाह आलम टू एक तरफ, एंड दूसरी तरफ इंग्लिश फोर्सेस. लेकिन ये पूरा अलायंस जो है वो डिफीट हो जाता है. अंडर whom, under the Major Hector Munro. Remember this name, he is leading the army of the English in the Battle of Buxar. So remember this name, Major Hector Munro. Okay, in the year 1764. So 1764 is that decisive year, that important year when this decisive battle was fought. Okay, now इस important battle की significance ये है that अब सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल आपके डिफीट नहीं हुए हैं, ओके, लेकिन मुगल एम्परर भी डिफीट हो गए हैं. सो नाउ एक तरीके से इंडिया डिफीट हो गया है. सो विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर्स फॉर द सुप्रीमेसी
ओवर द होल कंट्री, कंटेंडर दैट अभी तक तो शायद उनके एस्पिरेशंस, इंग्लिश के एस्पिरेशंस थे लिमिटेड इन द रीजन्स, पर्टिकुलर रीजन्स, जैसे अभी हम बंगाल की बात करें, लेकिन इसके बाद अब इंग्लिश रेडी है पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. ओके, इस बैटल के बाद मीर जाफर एग्री करते हैं कि ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पास ऑन कर दिए जाएंगे टू द इंग्लिश, जिसमें आपका मिदनापुर, बुर्दवान एंड चित्तागोंग है. ठीक है, एंड ये इंग्लिश को चले जाते हैं यहाँ पे, फिर इंग्लिश अपनी आर्मी मेंटेन करती है. सो रिमेंबर दीज रीजन्स, मिदनापुर, बुर्दवान एंड चित्तागोंग. ओके, नाउ इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल. और जैसा वो चाह रहे थे इंग्लिश की कोई भी ड्यूटीज हमको नहीं देनी पड़े, वैसा ही होता है इस बैटल के बाद. बस 2% की ड्यूटी उनको सॉल्ट पे देनी पड़ती है. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री नहीं हुआ है, सॉल्ट पे अभी भी उनको 2% की ड्यूटी देनी पड़ रही है. ठीक है, और डेथ हो जाती है अब मीर जाफ़र की डेथ हो गई है, और उनके माइनर सन है नज़ीमुद्दौला, ये नवाब बन जाते हैं. बट अगेन ही इज़ जस्ट फॉर द नेम सिक, रियल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ले इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबादार who could be appointed or dismissed by the English. Very important that though Nawab is there, but the real power of the administration की कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्न करेगा, वो है आपके नाइब सूबेदार. और नाइब सूबेदार को कौन अपॉइंट करता था या डिसमिस करता था? इंग्लिश. तो इनडायरेक्टली किसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया है? इंग्लिश के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया है. ओके, यहाँ थोड़ा क्लाइव के बारे में एक छोटा सा आपको ग्रे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देख लेते हैं. Clive was instrumental in laying the foundations of British power in India. We saw, right, in the Battle of Plassey, we saw. He was made the governor of Bengal from 1757 to 1761. जब बैटल ऑफ प्लासी आपका फॉर्ट हुआ 1757 में, तो उसके बाद इनको गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का फर्स्ट टाइम. देन दोबारा भी ये बनते हैं आफ्टर 5 years फ्रॉम 1765 टू 1767, दैट इज आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. सो रिमेंबर दैट बैटल ऑफ प्लासी के बाद भी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है. ही एडमिनिस्टर्ड द बंगाल अंडर द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने देखा था ना, डुअल गवर्नमेंट, राइट. ये किसकी देन थी? ये आपकी क्लाइव की देन थी, एंड टिल हिज रिटर्न टू इंग्लैंड. ठीक है, ही एलिजिडली कमिटेड सुसाइड देयर, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट या डुअल गवर्नमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट ही वॉज द गवर्नर 2 times. रिमेंबर दिस. ओके, एंड याद करना ईजी है शायद, आप बस बैटल ऑफ प्लासी याद रखिए, बैटल ऑफ बक्सर याद रखिए, ईयर दोनों के, एंड बस वही दोनों ईयर जो हैं वो गवर्नर बन जाते हैं. ठीक है, नाउ कम्स ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. इस बैटल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ट्रीटी साइन हुई है, विच इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. क्या टर्म्स हैं ट्रीटी के? रॉबर्ट क्लाइव कॉन्क्लूडेड 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एट इलाहाबाद. ठीक है, 1765 में. एक तो नवाब ऑफ अवध, बिकॉज नवाब ऑफ अवध वॉज ऑल्सो इन द अलायंस, एंड दूसरा मुगल एम्परर, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो देयर शाह आलम टू. तो रिमेंबर, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सिर्फ एक नवाब के साथ साइन नहीं हुई है, ये साइन हुई है नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ प्लस मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ. क्या टर्म्स हैं आपके ट्रीटी के? सबसे पहले तो इलाहाबाद और कारा, ये शाह आलम टू को सरेंडर कर दिया जाता है. ठीक है, ये अभी ध्यान रखिए, ये हम बात करें कि शुजाउद्दौला के साथ क्या ट्रीटी साइन हुई है. ठीक है, सो इलाहाबाद एंड कारा goes to the Emperor Shah Alam II. नेक्स्ट है आपका 50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी, जो हमने पहले मीर कासिम के साथ भी जब साइन हुआ था ट्रीटी तो उसमें भी देखा था. प्लस बलवंत सिंह, ही इज़ द जमींदार ऑफ द बनारस. तो ये पूरा इनको एस्टेट में, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट हाँ ये कुछ टर्म्स हैं आपके ट्रीटी के. ओके, नेक्स्ट आपकी ट्रीटी साइन होती है शाह आलम II, दैट इज मुगल एम्परर के साथ. इनके साथ जब साइन होती है तो क्या है, that the Mughal emperor, he resides at Allahabad, he agrees to reside at Allahabad to be ceded to him by the Nawab of Awadh under the company's protection. That is, आपने देखा कि इलाहाबाद को शुजाउद्दौला ने शाह आलम II को सरेंडर कर दिया, लेकिन अब शाह आलम II किसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे? ही विल रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी. एंड साथ में क्या एक फरमान इशू कर देते हैं जहाँ पे दीवानी ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रीटी में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दैट इज़
राइट्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज, अभी तक तो सिर्फ बंगाल का हाथ में आया था, बिहार का भी आ गया, उड़ीसा का भी आ गया, नेबरिंग रीजन्स का भी आ गया है। ये किसके हाथ में चला जाता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनुअल प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शंस, दैट इज मिलिट्री डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, इन सभी अफेयर्स के लिए इतना जो सम है वो कंपनी को दिया जाएगा। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध। अभी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर आपको नजर आएगा सामने, दैट क्लाइव अवध को एनेक्स नहीं करना चाहते थे, मतलब अवध को हरा दिया है, क्योंकि अवध का नवाब भी शामिल था इस बैटल में, उसको हरा भी दिया, फिर भी क्लाइव ने एनेक्स नहीं किया, बिकॉज बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी थी ये क्लाइव की, बिकॉज इट वुड हैव प्लेस द कंपनी अंडर द ऑब्लिगेशन, कि ये एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बन जाती कंपनी की अवध को प्रोटेक्ट करने की फ्रॉम दी अफगान्स एंड द मराठा इन्वेजन्स, जो उस टाइम पे आपके चल रहे थे ऑलरेडी। मराठा भी इन्वेड कर रहे थे और अफगानी रूलर्स तो इन्वेड कर ही रहे थे, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, यू नो। तो ये कितना एक डिप्लोमेटिक स्टेप था ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइव कि हमको अवध को एनेक्स नहीं करना है, एंड अवध को उन्होंने एक बफर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। और क्लाइव की जो अरेंजमेंट थी विद शाह आलम टू वॉज इंस्पायर्ड बाई द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, इट मेड द एम्परर अ यूजफुल रबर स्टैम्प ऑफ द कंपनी। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी एनेक्स नहीं किया एज सच, ठीक है, इनडायरेक्टली ठीक है, कंट्रोल आ गया है इंग्लिश कंपनी के हाथ में, बट पूरा का पूरा सॉवरेंटी नहीं ली है, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने की ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ना आए। ओके, यस। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अच्छा, पहले आप देखिए जो क्वेश्चन था हमारा, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था, हैव अ लुक एट दैट। द बैटल ऑफ बक्सर एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश एज द रियल मास्टर्स ऑफ द बंगाल, डिस्कस। तो इसमें सबसे पहले आप बैकग्राउंड में बताएंगे कि कैसे टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, पपेट बनाना चाह रहे थे इंग्लिश बट नहीं बने, एंड टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं, एंड मिसयूज हो रहा है दस्तक्स का। ठीक है, शॉर्ट में यू हैव टू टेल ऑल दिस, देन यू हैव टू टेल अबाउट दी ट्रांजिट ड्यूटी जो टसल हो रहा है, एंड कैसे बैटल से पहले जो है कुछ कुछ प्लेसेस पे इंग्लिश की, एंड फाइनली द बैटल, ओके, अंडर द मेजर हेक्टर मुनरो एंड द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ द अलाहाबाद। ओके, सो रिमेंबर दिस विल बिकम योर fourth point, the treaty of Allahabad. Okay, now let's have a look at the dual government in Bengal. रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस सिस्टम, दैट रूल ऑफ द टू क्या है कि कंपनी एंड द नवाब इन द बंगाल, जिसमें कि दोनों ही आपके दीवानी दैट इज सेम द कलेक्टिंग द रेवेन्यूज वाला राइट, और निजामत का मतलब है कि पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस, ये तो आपके किसके कंट्रोल में आ गए? ये तो आपके कंपनी के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, दैट इज इन ब्रीफ कि आपकी दो गवर्नमेंट्स चल रही हैं रीजन में, नवाब के अंदर भी गवर्नमेंट चल रही है और आपकी कंपनी के अंडर भी गवर्नमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि कंपनी के हाथ में क्या है? रेवेन्यूज कलेक्ट करने का राइट, जिसको दीवानी कहते हैं, और पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस, दैट इज उनके हाथ में कंट्रोल करने का भी राइट है अगर कोई रेबेलियंस होते हैं, जिसको निजामत कहा गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीवानी और निजामत ये किसके हाथ में चले जाते हैं? ये आपके कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। बाकी का जितना भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको कौन मेंटेन करेगा? उसको नवाब मेंटेन करेगा। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एडवांटेजियस था कंपनी के लिए, बिकॉज इट लेफ्ट द अपीयरेंस ऑफ अथॉरिटी टू द पपेट इंडियन। लग रहा है कि ठीक है, जो रूलर है उसके हाथ में ही अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन इनडायरेक्टली अथॉरिटी, भाई रेवेन्यूज कलेक्ट करने का राइट कंपनी के पास, पुलिस को कंट्रोल करने का राइट कंपनी के पास, तो है तो एक्चुअल में अथॉरिटी किसके पास है? एक्चुअल में कंपनी के पास है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अथॉरिटी किसके पास है? नवाब के पास है या फिर रूलर के पास है, while keeping the sovereign power in the hands of the company। की sovereign power अब किसके हाथ में आ गई है? कंपनी के हाथ में आ गई। सो नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो ज़रूरी काम है
जिससे एज सच कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो तो आपने किसको सौंप दिया, वो नवाब को सौंप दिया। लेकिन उसके लिए भी आपका नवाब किसके ऊपर डिपेंड है, फंड्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन द कंपनी, क्योंकि फंड्स का जो सोर्स है, रेवेन्यू का सोर्स, वो किसके हाथ में चला गया है, कंपनी, दैट इज दीवानी राइट्स आपके कंपनी के हाथ में चले गए हैं। एंड क्योंकि अब आर्मी भी इंग्लिश के हाथ में है, पुलिस और जुडिशरी उनके हाथ में है, तो पूरी तरीके से रूलर जो है वो पपेट बन गया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो द डुअल सिस्टम लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक डाउन, एंड ये काफ़ी डिजास्टरस भी प्रूव हुआ है पीपल ऑफ बंगाल के लिए स्पेशली, क्योंकि ना तो कंपनी को फ़र्क पड़ रहा था कि उनकी क्या कंडीशन है, उनको क्या लॉस हो रहा है, ओके, और ना ही नवाब को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम हो भी रहा है या नहीं। एंड लेटर ऑन 1772 में वॉरेन हासिंग्स जो है इस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, वॉरेन हासिंग्स इज योर गवर्नर जनरल, एंड ही totally abolishes this dual system of government. Okay, so this was about a dual system of government. यहाँ पे आप जब क्वेश्चन करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो just mention that दीवानी and निज़ामत are under the company. Okay, the first point. Second, you will mention that how it was advantageous to the company, and third, that Warren Hastings did away with the dual system of government in 1772. So this was all about your Battle of Plassey and Battle of Buxar today. Very important battles. इस चैप्टर में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ द नवाब्स ऑफ द बंगाल, मुर्शीद कुली खान से लेके आपको मीर कासिम तक जो है याद रखना है, एंड देन दी प्रिल्यूड्स एंड द बैकग्राउंड्स ऑफ द बैटल्स. Okay, next lecture we will deal with the Mysore resistance, and that's it for today. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.